Hi students, today we are discussing chapter 2 polynomials. That is very important part of algebra. In this chapter, first of all we have to discuss about definition of polynomials. What is meant by polynomial? Polynomial क्या होता है? In previous class you have studied about algebraic terms, variables, constant, so on. Polynomial is also a part of algebraic terms or group of algebraic terms with variables and constants. Now how can we define polynomial? In algebraic form, polynomial is an algebraic expression with positive integer exponent of variable is called polynomial. क्या मीनिंग है इसका? सिंपली algebraic expression, फर्स्ट कंडीशन है algebraic expression. algebraic expression का मीनिंग है ग्रुप ऑफ algebraic terms जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट होंगे विद पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, मतलब जो पावर होगी वेरिएबल की वो क्या होना चाहिए? तो पॉजिटिव होना चाहिए. सेकंड इंटीजर होना चाहिए, मतलब जो वेरिएबल की पावर होगी एक्सपोनेंट होगी वो पॉजिटिव. सेकंड इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होगी. देन इट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल. क्लियर? फॉर एग्जांपल 4x square. 4x square is a polynomial. Why? Because in this expression variable is x and its exponent is 2, that is positive integer. In second example 3x plus 8, 3x is algebraic term and 8 is constant term. There are two terms 3x and 8. It is also a polynomial because in this expression exponent of x is 1. 3x means 3x to power 1. Third example is 12. 12 is a constant term and constant term can be written as 12x to power 0 and 0 is an integer. Clear? And it is known as constant polynomial. That is a different category. Constant polynomial in which variable is not present or exponent of variable 0, then it is called constant polynomial. So an algebraic expression with positive integer exponent of variable is called a polynomial. अगर अपन को डेफिनेशन लिखना है polynomial की तो ये एक्यूरेट डेफिनेशन होगी. सेकंड, टाइप्स ऑफ polynomial. टाइप्स ऑफ polynomial, इसमें टू टाइप्स ऑफ polynomials we can classify. फर्स्ट with respect to number of terms, second with respect to degree of polynomial. number of terms के अकॉर्डिंग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल and at last polynomial. If an algebraic expression has one term only, then it is called monomial. If it has two terms, then it is called binomial. If it has three terms, then it is called trinomial, and more than three terms. More than three terms, then it is called polynomial. One term monomial, two terms
बाइनोमियल 3 टर्म्स, ट्राइनोमियल more than 3 terms, polynomial. We can write example of a monomial 5x. 5x is a monomial because it has one term only. 7x plus 9, it is a binomial because there are 2 terms. Any other example, x square plus 4x minus 6, it is a trinomial because it has 3 terms and more than 3 terms, polynomial. Then suppose x cube minus 4x square plus 6x minus 8. So there are 3 terms and it is called a polynomial. That is classification basis on the number of terms of the polynomial. Clear? The next topic is degree of a polynomial. Degree of polynomial, the highest exponent of variable of a polynomial is called its degree. क्या मीनिंग है? सिंपली कोई भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल. फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, ये पोलिनोमियल गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8. और वी हैव टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल. क्या करेंगे? वेरिएबल देखेंगे. फर्स्ट टर्म में वेरिएबल x, सेकंड टर्म में वेरिएबल x प्रेजेंट है. फर्स्ट टर्म में एक्सपोनेंट क्या होगी? 2, सेकंड टर्म में 1. 2 इज हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ variable in this polynomial. Therefore degree of this polynomial is 2. In second example 12x plus 10, degree of this polynomial is 1. Why? Because in term 1 exponent of variable x is 1. It can be written as 12x to power 1 plus 10. It means degree of this polynomial is 1. If there is a constant term, suppose (14) a term number is given and we have to find out degree of this polynomial. In this situation variable is not present, it can be written as 14x power 0 and we can write that degree of this polynomial is 0. तो जब भी कांस्टेंट टर्म गिवन होगी तो डिग्री 0 होगी. नाउ टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. फर्स्ट लीनियर पोलिनोमियल. लीनियर पोलिनोमियल, इफ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इज 1 देन इट इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल. कोई भी पोलिनोमियल गिवन है, इसकी डिग्री अगर 1 है तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल. डिग्री 1 का क्या मीनिंग है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1. एग्जाम्पल 4x plus 9. 4x plus 9 is example of a linear polynomial because in this polynomial exponent of x is 1 and its general form can be written as ax plus b. जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल क्या लिख सकते हैं? ax plus b, where a is कोफिशिएंट ऑफ x, a किसको रिप्रेजेंट करेगा? कोफिशिएंट ऑफ x, एंड b रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट टर्म. जैसे एग्जांपल जो गिवन था 4x plus 9, इसमें a की वैल्यू क्या होगी? 4. a इक्वल्स टू 4 लिख सकते हैं एंड b इक्वल्स टू 9. कांस्टेंट टर्म 9 है तो वैल्यू ऑफ a is 4, b is 9 in this polynomial. Clear? Second, quadratic polynomial. Quadratic polynomial क्या मीनिंग है? डिग्री 2. A polynomial with degree 2 is called quadratic polynomial. अगर हाईएस्ट पावर 2 होगी तो उसको बोलेंगे quadratic polynomial. और इसकी जनरल फॉर्म होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ax स्क्वायर
क्या मीनिंग है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी वो 2 होगी। जब हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 होगी तो इसका जो कोफिशिएंट होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, a, कोफिशिएंट ऑफ x b और कांस्टेंट टर्म c। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक polynomial. And example, we can write 6x square minus 8x plus 5. It is a quadratic polynomial because highest exponent is 2. And one another important thing, linear polynomial having 2 terms maximum. लीनियर पोलिनोमियल में मैक्सिमम 2 टर्म्स हो सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं होगी। क्लियर। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम कितनी टर्म्स हो सकती है, 3। मिनिमम 1 भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 3 होगी। नेक्स्ट, क्यूबिक पोलिनोमियल। इफ डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इज 3 देन इट इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। जनरल फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसका मीनिंग क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 4। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स होगी 4। ax क्यूब मीन्स a इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, b इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c इज कोफिशिएंट ऑफ x and d is constant term. For example, x cube plus 7x square minus 4x plus 9 is an example of cubic polynomial. Clear? Value of a in this polynomial is 1. x cube का मीनिंग है 1x cube. Value of b is 7. Value of c is minus 4. Value of d is 9. b is coefficient of x square, c is coefficient of x and d is constant term. Now जीरो जो पोलिनोमियल का क्या मीनिंग है, सिंपली द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर विच पोलिनोमियल बिकम्स जीरो। कोई भी पोलिनोमियल गिवन है, उस पोलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू जो पुट करेंगे उससे इसकी वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। एग्जाम्पल से क्लियरली समझ में आ जाएगा। 4x प्लस 8 इट इज़ अ पोलिनोमियल एंड वी हैव टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का जीरो क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। 4x प्लस 8, x की कौन सी वैल्यू होगी जिससे पोलिनोमियल जीरो हो जाए। x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 4 × 1 4 प्लस 8 12 होगी। 2 पुट करते हैं तो 2 4 या 8 प्लस 8 16 होगी। इसका मीनिंग पॉजिटिव वैल्यू पुट करने से जीरो नहीं आएगा। अगर x की वैल्यू इसमें -2 पुट करते हैं, 4 × -2 -8 और प्लस 8 0, क्या मीनिंग हुआ इसका, सिंपली x = -2 इज जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। x की वैल्यू -2 पुट करने से इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसका मीनिंग है कि -2 इस पोलिनोमियल का जीरो है। सेकंड, 7x इज गिवन पोलिनोमियल एंड वी हैव टू फाइंड आउट जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। x की कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, कंप्लीट वैल्यू जीरो हो जाए। तो 7x को 7 × 0, अगर x की जगह पे जीरो पुट करते हैं तो 7 × 0 = 0। क्या मीनिंग हुआ, जीरो इज जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। 7x जो पोलिनोमियल गिवन है इसका जीरो क्या होगा, जीरो ही होगा। थर्ड, x - 5, x की वैल्यू क्या पुट करें जिससे ये जीरो हो जाए। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो ये 5 - 5 0 मीन्स 5 इज जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। जनरली लीनियर पोलिनोमियल हैज़ 1 0 ओनली। कोई भी लीनियर पोलिनोमियल गिवन है उसमें नंबर ऑफ जीरो अगर फाइंड करना है तो 1 0, मतलब एक ही आंसर होगा, एक ही जीरो फाइंड होगा। फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोस में बी 2। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है
तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू वेरिएबल की 2 हो सकती है। और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे। देखो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसके जीरोज फाइंड करने हैं। क्या करेंगे, एक्स की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है जिससे इसकी वैल्यू जीरो हो जाए। देखो एक्स इक्वल टू अगर 3 पुट करते हैं तो ये 3 स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 9 माइनस 9 0। फर्स्ट आंसर क्या आ गया, 0। अगर इस एक्स की वैल्यू -3 पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू -3, देन -3 स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 9 माइनस 9 0, तब भी 0 आ रहा है। इसका क्या मीनिंग हुआ, एक्स इक्वल टू 3 एंड एक्स इक्वल टू -3, फॉर बोथ द वैल्यूज polynomial becomes 0. It means both the values are zeros of this polynomial, x equal to 3 and x equal to -3. X equal to 3 and -3 are zeros of this polynomial. It means quadratic polynomial has 2 zeros maximum. Similarly, for cubic polynomial, maximum number of zeros can be 3. Simply can write the number of zeros of a polynomial depends on degree of the polynomial. अगर डिग्री 2 होगी तो नंबर ऑफ जीरोस 2, नंबर ऑफ डिग्री 3 देन नंबर ऑफ जीरोस 3, इफ डिग्री 4 देन नंबर ऑफ जीरोस 4। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इफ गिवन पॉलिनोमियल इज px दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 2, कोई पॉलिनोमियल गिवन है इसकी वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 2। क्वेश्चन क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1। x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करेंगे, फर्स्ट में पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2, अब फर्स्ट वैल्यू x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो p1 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2, 3 इंटू 1 स्क्वायर 3 प्लस 2 5। तो p1 इक्वल टू 5 का मीनिंग है x इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 5। x इक्वल टू -1 देन p -1 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 2, 3 इंटू 1 प्लस 2 5 मीन्स वैल्यू ऑफ -1, value of x is -1, then value of polynomial is also 5. For x equal to 1 and -1, value of polynomial remains 5. Thank you.